Hello everyone, welcome to this another vibrant episode, Rachna, the Mind Architect Diaries. Here in this podcast, I invite guests from various fields and various niche who are sharing their experiences, their knowledge and expertise. And taking things forward, today we have with us Pooja Pandey from Delhi, and she is a life coach and the founder of Empower You. So let's ask from Pooja herself. Pooja, अपने बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं. Hello, Rachna. Very good evening. Thank you for inviting me this podcast. Guys, I am Vijay Pandey, the life coach, founder of Empower You, as Rachna already told. Basically, देखिए मेरी जो modalities हैं, I am life coach. I am helping people, but by modalities like handwriting analysis. Handwriting analysis means कि through handwriting analysis, I read people's subconscious mind and then हम्म. give them clarity to move further in their life, whatever their goals, whatever their strengths, weaknesses. So I help them to overcome their weaknesses and improve more their strengths, so that they can feel more confident. Yeah. And as my company's name is Empower You, so my main motto is to help people to feel empowered and embraced growth. Yes, handwriting analysis, face reading. Through face reading, I'm also helping people Oh, to great, counsel and great. all. Yes, great. So So, I'm like good. I'm tarot definitely reading. going to take that opportunity if we get some time कि face reading को हम थोड़ा सा explore करें. ठीक है. Correct. So, Pooja, first of all, on this note, first of all, I invite wholeheartedly on my podcast, and thank you for accepting my invite. I really love that what you are doing and how you are doing using different modalities को आप combine करके लोगों की help कर रही हैं. तो पूजा, मैं जानना चाहूंगी ऑडियंस की तरफ से पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट मेड यू स्टार्ट हेल्पिंग पीपल द वे यू डू टुडे. कि ये जो आप इस तरह से कर रहे हैं वो उसका मोटिवेशन कहाँ से आया, किस तरह से ये जर्नी स्टार्ट हुई. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा. सी रचना, लाइक सबका एक यूएसपी होता है ना. सो माय हम्म. यूएसपी इज आई ऑलवेज लव टू हेल्प पीपल. Like whenever someone came to me, see, this is my problem, like I'm stuck somewhere, so I love to people guide, help, motivate. And I always feel happy when I see people that okay, इसको मैंने मोटिवेट किया था, ये मेरे हम्म. पास बैठा तो और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है. आगे So गया. at the end of yes, at the end of the day, I always feel contented and happy. That creates sense of fulfillment in me. So that inspires me कि learn some skill एंड उसको अप्लाई करो. अपनी जो आपकी यूएसपी है उसको एक ऑथेंटिक वे में, ठीक है, एक हम कहते हैं ना, हमारे पास एक वैलिडेशन होना चाहिए. सो हम्म. आई दैट्स व्हाई आई लर्न. मेरा पीछे का मोटिव ही यही था. आई जस्ट वांट टू हेल्प पीपल टू ग्रो एज मच एज दे कैन. सिंपल. ग्रेट. आई लव टू ग्रेट. मोटिवेट पीपल. पूजा, आप कब से इस सेगमेंट में हैं, कब से आप लोगों को सर्व कर रहे हैं. लास्ट 7 years. ग्रेट, ग्रेट. गुड टू हियर दैट कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फीमेल्स जो है अपने एक मतलब एक डिफरेंट फ्रंट पर आज के टाइम में वो है कि वो फैमिली भी संभाल रही है, वो बाहर भी देख रही है, वो घर भी देख रही है, वो बच्चों को भी देख रही है, वो हस्बैंड्स के साथ भी मैनेज कर रही है. मतलब हमने ये फेज एक वुमेन्स का हमने सुना तो था, बट आज के टाइम में मैं देख रही हूँ कि वो इम्प्लीमेंट होता हुआ एक बहुत अच्छे उस मोटिव के साथ. एजुकेशन बैकग्राउंड है, सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट है, और नहीं भी है, दे आर सो विलिंग कि हमें करना ही है. देयर इज नो वे आउट. यस. एंड आपने जो हैंडराइटिंग एनालिसिस का बताया, तो हैंडराइटिंग एनालिसिस में बेसिकली आजकल के टाइम में तो ये इतना ट्रेंडिंग है, लोग इतना पसंद कर रहे हैं इस चीज को, लोग इतना. और ये एक्चुअली चीजें काम करती हैं. एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये है कि कॉन्शियसली सबकॉन्शियस माइंड की तो बात अलग ही जाती है. दीज थिंग्स आर बैक्ड बाय रिसर्च एज वेल. ये चीजें काम करती हैं कि आपने किस तरह से साइन करा, किस तरह से स्ट्रोक किया, किस तरह से आपने डॉट लगाया, किस तरह से आप अपने नाम के नीचे एक लाइन लगा रहे हैं अगर, तो उन सभी चीजों के मतलब है वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को कर रहे हैं. तो पूजा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं इसी से रिलेटेड पूछना चाहूंगी कि अगर कोई पर्सन क्या सिग्नेचर्स में चेंजेस करके किस तरह के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, अगर कोई हाँ, अपना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा. देखिए मैं बताती हूँ. क्या होता है कि आपको एक जस्ट मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ कि जो हम्म. सिग्नेचर है, दैट रिप्रेजेंट्स आवर पब्लिक पर्सनालिटी. कि अच्छा. व्हाट काइंड, हाउ वी आर गोइंग टू बिहेव इन पब्लिक, कि हम लीड लेंगे या हम बैकफुट पे रहेंगे, ठीक है, अच्छा. या हम बहुत एग्जैजरेट कर रहे हैं अपने कॉन्फिडेंस का और बैक ऑफ द माइंड ऐसा है नहीं. तो सबको सिग्नेचर से पता चलता है. तो आप अगर सिग्नेचर में पॉजिटिव चेंजेस करेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर एक अच्छी लीडरशिप स्किल आप डेवलप कर सकते हैं इन पब्लिक.
ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपनी इनिशिएटिव टेकिंग कैपेबिलिटीज को आप बहुत बढ़ा सकते हैं, आपके फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट्स भी हो सकते हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, प्रेजेंटेशन स्टाइल है, वो भी हम्म। सिग्नेचर से इम्प्रूव होता है। तो ये मैंने कुछ पैरामीटर्स बताए हैं, हाँ हाँ। आपके हेल्थ इश्यूज भी इम्प्रूव होते हैं। ओह सो रियली। बेसिकली हाँ, यस, बट लेकिन हम जब आई डू व्हाट आई डू, I always take handwriting with signature. I'll never suggest changes without taking handwriting. As ओह। handwriting, जो पैराग्राफ आप लिखते हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ की बात बताएगा कि आप हम्म पर्सनली कैसे हैं, तभी तो मैं हम्म। आपको पब्लिकली उस चीज से अलाइन करवा पाऊंगी ना। आप एग्जैक्टली। समझ रहे हैं ना, हाँ। मैच होना चाहिए, नहीं तो समझ रहे हैं। सो हम्म। ये है तो सिग्नेचर देखो, आई एम द लाइव एग्जाम्पल, आई हैव चेंज माई लाइफ, माई होल ग्रेटिट्यूड टू दिस हैंड राइटिंग एनालिसिस, दिस वाह साइंस वाह क्रिएट मैजिक इन माई लाइफ, वाह so वाह that's why वाह। I'm here. वाह वाह, गुड टू हियर दैट। और बहुत सारी चीजें आपने बताई। एक्चुअली ज्यादातर हम सिर्फ हैंडराइटिंग को सोच के सिर्फ सिग्नेचर से उसको एसोसिएट कर लेते हैं, और हम एक छोटे से एक थॉट प्रोसेस में रह जाते हैं, हम उससे ज्यादा बड़ा हम्म। सोचने की कोशिश ही नहीं करते। बट इसके इतने सारे इम्पैक्ट्स हैं, ये मुझे भी आज पहली बार ही पता चल रहा है। मुझे अभी तक ये था कि सिर्फ नेम से थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगे, मे बी कुछ हम करियर अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर लेंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन इतनी सारी डायमेंशंस को ये टच करेगा, ये मुझे भी इतना अवेयरनेस नहीं था। थैंक्स फॉर शेयरिंग, पूजा। So, Pooja, my next question to you is that why do people feel stuck in their life even if they have big goals or big dreams? क्यों लोगों को लगता है कि वो अटक गए हैं, बढ़ नहीं पा रहे, ड्रीम्स में अचीव नहीं कर पा रहे? क्या रीजंस क्या हैं उनके? Rachna, see, we all were stuck somewhere in life. That's why we are here. Obviously, we worked on ourselves. So there are so many parameters. Like first is comfort zone. हम्म। People have big dreams, but they don't want to come out of their comfort zone. Okay. And lack of self belief, their family conditioning, and inconsistent habits, procrastination. This is the main reason like people procrastinate and delays their dreams. And there is gap between their what they want in life and their action. I mean, Yeah, सोच तो yeah. बहुत बड़ा लिया, but उसके लिए they are not taking right actions. Yes, yes, yes. Limiting belief, so that's why these are the things that make people stuck. एंड रियलिटी में और जो उनके ड्रीम्स हैं उसमें जो वो क्या सिंक्रोनासिटी जो है ना, वो मतलब अलाइन अलाइन नहीं है बेसिकली उनके गोल और एक्शंस, इस वजह से वो अपनी लाइफ में स्टक। सो और पीपल नीड टू थिंक ऑन दिस, यस। यस, बहुत बहुत अच्छी बात पूजा आपने बताई है कि सभी चीजों में लोग अटके रहते हैं, फंस जाते हैं, और वहां से निकलने की कोशिश नहीं करते, और एक्चुअली इतना ज्यादा ये थॉट प्रोसेस डीप हो जाता है कि वो उस लूप में फंसे ही रह जाते हैं, निकलते नहीं। एंड दे आर सो रिलक्टेंट इन टेकिंग हेल्प्स। कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट करेक्ट। होता है उसके लिए वो एकदम से कदम उठाते हैं, लेकिन इन चीजों को वो इतना लाइटली ले लेते हैं, जबकि ये लाइफ के इतने बड़े डिसीजंस हैं, इतनी बड़ी चीजें हैं कि इन पर डिसीजन लेना बहुत बनता है, जरूर बनता है, लेकिन वो फिर भी नहीं लेते हैं। तो जो भी जितने भी लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने आपको लगता है कि आप अपने ड्रीम्स में, गोल्स में कहीं अटके हुए हैं, कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, अगर आपको कोई थॉट्स परेशान कर रहे हैं, तो आप किसी की हेल्प लें। वी बोथ आर हेयर in different ways, in different segments with different niche, and आप अपनी फैमिली फ्रेंड से स्टार्ट करते हुए एक्सटर्नल हेल्प की तरफ जा सकते हैं। सो द मोटिव इज टू कि आप अपने गोल्स की तरफ जाएं, उनको अचीव करें। अगर आपने सोचा है कुछ कि हमें कुछ अचीव करना है, तो डेफिनेटली उसकी तरफ मूव करें। पूजा, माय नेक्स्ट Many times, क्वेश्चन। sorry, हाँ, sorry, इट्स ओके। Rachna, one more thing is, many times people have, big dreams, big goals, but they don't know from where to they have to start. ये But they don't know यस that starting point. यस। कोई किक मिस होता है उनकी लाइफ हाँ में, वो किक मिल जाता है तो फिर दे हाँ। उनका जर्नी अच्छा चलता है, ये चीज। Great. So my next question is, Pooja, how do you feel help someone find clarity when their mind feels messy? कुछ mind में अगर messy चल रहा है, तो वो कैसे clarity को find out करें, क्या करें? हाँ, देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। व्हाट आई यूजुअली डू विद माय क्लाइंट्स, लाइक इफ सम, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर कमिंग टू मी, सो हम्म। व्हाट आई डू फर्स्ट, आई क्रिएट अ सेफ एंड नॉन जजमेंटल स्पेस where I can listen to a whole story. I'll give people time that speak as much as you can, vent out as much as you can, so that I clarify their thoughts. And then I chunk down their thoughts to know that what are their strengths, what are their weaknesses. And like I usually ask few questions like, okay, what are your strengths? What is hampering you? What are your family conditioning? All these things, so that we can prioritize steps.
and that move towards a clearer direction. So this is all messy mind to clear mind, so that I can set priorities. Like उनका story समझा, हम्म। उसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में चंक डाउन किया, एंड देन उसमें से मैंने उनके स्ट्रेंथ को देख के वहां से मैंने एक स्मॉलर एक्शन निकाला कि स्टार्ट फ्रॉम देयर। ओके। अगर अगर हाँ। जो ऑडियंस हमारी ये देख रही है, अगर वो कुछ इनपुट चाहे कि वो खुद से कैसे कर सकते हैं, या किस तरह से वो अपनी जर्नी को हम्म। स्टार्ट करें, कैसे अपने मैसी माइंड को थोड़ा सा इतना तो लेकर के आए कि वो एक स्टेप उठाएं। कभी कभी वो इतना भी कंफ्यूज हो हम्म। जाते हैं कि दे गो इनटू आइसोलेशन मोड, कि किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं हाँ, कर रहा, तो कैसे वो एक फर्स्ट स्टेप, क्या थॉट हो सकता है वो, कि एटलीस्ट वो किक देखिए, हाँ, ले ये अपने। बहुत अच्छा, हाँ, देखो ये आपने बहुत अच्छा बोला है। कई बार वी डोंट हैव हेल्प या वी हाँ। डोंट हैव राइट पीपल, राइट। है ना, कहाँ से हम लेंगे? कहाँ तो से लेंगे? ऐसे केस में क्या होता है, टेक अ पॉज। ये एक हम्म। स्मॉलर स्टेप है जो वी एवरीवन वी शुड टेक, दैट टेक अ पॉज एंड राइट डाउन योर होल थॉट्स। होल जो भी माइंड में आपके क्लटर्स थॉट जो भी चल रहा है उस टाइम पे, ठीक है, वो सब आपने लिखा, जस्ट पेन डाउन ऑल द थिंग्स, ठीक है, हम्म। आपने उसको लिखा, उसको एक्नॉलेज किया, और देन उसमें से आपको जो आपको लाइफ में करना है उसके लिए एक सबसे स्मॉलर आपने स्टेप चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है यू आर गुड इन टीचिंग, आपको ये भी पता है कि आप टीचिंग में क्या पढ़ा सकते हैं, मैथ्स पढ़ा सकते हैं सपोज करिए, तो जस्ट फाइंड अ गुड मेंटर जहां से आपके वो मैथ्स पढ़ाने की स्किल पॉलिश हो जाए। अब हम्म। आपने वहां से वो उठाया, लेकिन अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो फिर वही बैक टू पवेलियन। हम्म। सो यू हैव टू टेक एक्शन राइट नाउ। जैसे ही आपको एक स्मॉलर स्टेप मिल गया कि यस ये रिक्वायर है अभी की सिचुएशन में मेरे लिए, यू हैव टू टेक इवन टाइनी स्टेप्स कैन लीड यू टू अ बेटर लाइफ, आपको आपके गोल तक पहुंचाएगा। लेकिन आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, वाई, वाई आपका क्लियर। सो आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ एज मच एज यू कैन, बार बार अपने आप को हिट करो, अब तो इसलिए पेन डाउन करो। एंड हम्म। अनदर थिंग व्हाट पीपल कैन डू, व्हाट वी ऑल कैन डू, रीड गुड बुक्स, ओह। एज बुक्स आर अवर ट्रू फ्रेंड्स। या। बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है। फाइंड अ गुड बुक अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन एंड जस्ट फॉलो द ट्रिक्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल द वन थिंग इज अ वेरी गुड बुक, जस्ट उसमें यही बताया हुआ है कि सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है। कहते हैं ना वो, आप जर्रा जर्रा आपको उस चीज से मिलाने की मिलाने कोशिश की करता कोशिश है, अगर करता है। आपने उसमें पूरी एनर्जी लगा दी। सो द वन थिंग बुक इज, ऐसे तो बहुत सारी बुक्स है, द वन थिंग, द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा, ऐसी बुक्स पढ़ने से भी आपको बहुत क्लैरिटी मिलती पूजा, अंटिल यू फाइंड समवन गुड। पूजा, मैं एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि इस मोमेंट में, जैसे कि हमने बात की कि जर्रा जर्रा उसको मिलाने मिलाने की की कोशिश में, कोशिश। क्या आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में? यस, सॉरी। इट्स ओके, पानी लो। रचना, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझे। आई लव टू शेयर माई लाइफ स्टोरी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, हम सो सुनना मेरे चाहेंगे। अंदर, हाँ, हाँ, हम्म। तो मेरे अंदर सबसे बड़ा फियर पता क्या था, मुझे यही नहीं पता था कि मैं किस चीज के लिए बनी हूँ। ओह। लैक ऑफ सेल्फ बिलीव, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं बहुत लाइफ में स्टक रही हूँ, आपको पता है, बहुत ज्यादा स्टक रही हूँ। एंड आई वॉज लाइक, जैसे मैं, कोई इंसान हंग्री नहीं होता है कि कोई ही हम्म। काम दे दो मैं कर लूंगी, कर ऐसे लूंगी। था। ठीक है। तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो मैंने हैंड राइटिंग एनालिसिस सीखा, आई हैव डन वर्क ऑन माई सेल्फ। फिर मेरा हम्म। सबसे बड़ा फियर ये था, पब्लिक फियर, कि मैं हम्म। क्या पब्लिक के सामने क्या अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि यस आई एम समथिंग, मेरे पास स्किल है, मुझे सुनो। ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने ना, आज से 4-5 साल पहले मैं ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करने का सोचती थी, पर मैं डर जाती थी कि मैं वहां जाके टैलेंट क्या दिखाऊंगी, आई एम वर्दी इनफ टू शो माई सेल्फ। लेकिन अब ये सब करने के बाद आई हैव पार्टिसिपेटेड इन 2 पेजेंट्स एंड आई गॉट, आई मीन, एक में मुझे मिसेस नॉर्थ वेस्ट इंडिया का टाइटल मिला, एक में मुझे मुझसे वर्ल्ड इंडिया इंटरनेशनल का वाह टाइटल वाह। मिला, एंड मैं बहुत ऐसे सारे इवेंट्स में जाती रहती हूँ। नाउ मेरे अंदर वो जो एक लैक ऑफ लो सेल्फ एस्टीम वाली पूजा थी वो खत्म हो चुकी है, एंड नाउ आई एम हैविंग फुल कॉन्फिडेंस कि अगर मुझे नहीं भी आ रहा है ना, तो मैं उसको एक्नॉलेज करूंगी कि सी आई एम स्टिल लर्नर। पर मैं अब उसको लेम एक्सक्यूजेस नहीं दूंगी कि ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, जब हमारे पास स्किल नहीं होती है ना हम्म। रचना, सो हाँ। हम लेम एक्सक्यूजेस के पीछे छुपते हैं। यस बट यस अगर यस। हमारे पास स्किल है और हम इम्प्रूव कर रहे हैं, तो हम बहुत कॉन्फिडेंटली उस चीज को एक्नॉलेज भी करते हैं कि सी दिस इज, स्टिल वी नीड टू गो फॉर।
सो हम्म। मैंने अपना जो ये कॉन्फिडेंस वाला बैरियर है, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, प्रोक्रेस्टिनेशन, कंफर्ट जोन में रहना, ये सब ओवरकम किया है। ग्रेट और ग्रेट। ऐसे ही पेन डाउन करने से और अपने आप को पुश करके हिट करके। गुड गुड टू हियर दैट, लव टू हियर दैट कि कितना पुश करने के बाद कहाँ तक आप पहुंचे हो। डेफिनेटली जितने भी लोग इसको देख रहे हैं उनको भी ये मोटिवेशन मिलने वाला है, स्पेशली हमारी फीमेल्स को जो कि कहीं स्टक है, उनको लगता है कि मूव कैसे करें क्या करें। तो डेफिनेटली वो इसको देख करके बहुत इंस्पायर होने वाली है कि हम आगे किस तरह से मूव अभी कर आई सकते हैं। हैव, यस, आई हैव 100+ टेस्टिमोनियल्स जो मैंने वाह लोगों को वाह काउंसलिंग्स दिए है, कंसल्टेशंस दिया है, वाह। 5,000+ हैंड राइटिंग एनालिसिस किया है, 500+ फेस रीडिंग किया है, एंड डेली आई एम लर्निंग। ऐसा नहीं है कि लर्निंग इज अ कांस्टेंट प्रोसेस, बट आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि अब मेरे पास कोई आएगा ना, तो आई हम्म। डेफिनेटली हेल्प उसको, कहीं ये तक तो मैं ले जा सकती कहीं हूँ, तक तो ये ले जा मुझे सकते। पता है। डेफिनेटली डेफिनेटली। पूजा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि वो इनर चेंज जो होता है, वो जो रियल इनर चेंज होता है, वो कैसा फील होता है, कैसा कैसा लगता है, वो कैसा हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में वो चेंजेस लेकर के आता है। हाँ सी, एक तो सबसे बड़ा एग्जांपल मैं हूँ कि जैसे मैं हर चीज बता रही हूँ स्माइल के साथ बता रही हूँ ना, अभी आप हम्म मुझे किसी चीज के लिए कॉन्ट्राडिक्ट भी करेंगी तो मैं उसको अंडरस्टैंड करूंगी। तो इनर चेंज वाले जो लोग होते हैं कैसे दिखेगा, आप उनमें देखेंगे उनके अंदर ना एक अलग सा सेंस ऑफ अवेयरनेस होता है। हम्म। सबसे पहले वो आपको अवेयर पीपल दिखेंगे, ठीक है। उनके पास एक्सेप्टेंस होती है, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल इन स्पाइट ऑफ जजिंग देम, ठीक है। देन दे हैव ग्रेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्डिंग नॉट रिएक्टिंग इन एनी सिचुएशन। जैसे हम रिएक्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे, नहीं, वो उनको रिस्पॉन्ड करना आएगा कि ना बेटर वे हाउ दे कैन रिस्पॉन्ड टू एनी सिचुएशन, ठीक है। कॉन्फिडेंस, आप ये तो बहुत बेसिक सी चीज है कि कोई इनर हम्म अवेकन पर्सन है तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, ठीक है। हम्म। एक्सेप्टेंस फॉर अदर्स, एंड फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज दिस कि दे आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट मैटर्स टू देम मोस्ट, व्हाट टू इग्नोर, व्हाट टू एंटरटेन। वाह। ये रहता है ईयर अवेकन, अगर इनर अवेकन पर्सन है तो आप उसमें ये चीज देखेंगे। एंड दे आर मोर काइंडर टू देमसेल्व्स, कंपैशन बहुत होगा उनके अंदर, दूसरों को लेकर भी और अपने आप को भी लेकर के। कंपैशन, डेफिनेटली। एक्सेप्टेंस, अडेप्टेबिलिटी, ये सब आपको देखने को मिलेगा उनके अंदर। लवली लवली, गुड टू हियर दैट कि डेफिनेटली इतने सारे पैरामीटर्स हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, हम देखते नहीं है। ना तो हम अपने अंदर देखने की कोशिश करते हैं, ना है अपने आसपास को देखने की कोशिश करते हैं। तो गर्ल्स और जितने भी लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं वो देखें और समझें इस चीज को कि आपके अंदर जब इनर अवेकनिंग आती है, एक इनर आपके अंदर हीलिंग होती है, तो कैसा फील होता है। और ये 5 to 10 पैरामीटर्स पूजा ने हमें दिए हैं जिस पर हम चेक कर सकते हैं। अगर आप इसमें एंड से। यस, हाँ, वन मोर थिंग दे हैव, आई मीन उनका जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, इमोशनल बैलेंस होता है ना, वो भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। फॉर हम्म एग्जाम्पल कि बहुत खुशी की बात आ गई है तो भी वो नॉर्मल बिहेव करेंगे, बहुत हम्म। दुख की बात आ गई है तो भी वो नॉर्मल, इसको कहते हैं बैलेंस्ड इंसान। बैलेंस कि बैलेंस पर्सनैलिटी। ब्रेकअप हो गया है तो भी वो इंसान अपना काम करेगा उठ करके, ठीक है। और मान हम्म लो कोई रिलेशनशिप में भी आ गया है तो भी उसका जो लाइफ का जो काम चल रहा है, पर्पस है, वो बिल्कुल डिफाइंड है, कुछ उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, बहुत लेस उसकी लाइफ में डिस्टर्बेंस रहती है अगर हम्म इंसान जो है वो इनर अवेकन्ड है। हम्म। तो यहाँ से, एंड जैसे फॉर एग्जांपल व्हाई आई हैव लर्न दीज मोडालिटीज लाइक हैंड राइटिंग एनालिसिस एंड फेस रीडिंग, मेन मैंने ये दो क्यों था, इसके पीछे का पर्पस ये था, आई वांट टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ एज वेल एज अदर्स, कि मेरे वाह। अंदर से वो जजमेंट निकले और एक्सेप्टेंस आए हम्म। कि हर इंसान अलग है, हर साइकोलॉजी अलग है, तो मैं किसी को जज नहीं करूं, आई ट्राई टू एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड पीपल बेटर। ग्रेट तो ये ग्रेट। पीछे का हाँ माइंडसेट है उसका। वाह वाह। तो जितने भी लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं उनको ये चीजें समझ में आएंगी कि जब आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। और आप चेक कर सकते हैं कि डेफिनेटली आपने जो भी कदम उठाए उससे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पूजा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि करियर ग्रोथ और मेंटल वेलबींग साथ साथ चले। कि अगर क्या क्या लोगों को ये डाउट हो सकता है कि अगर हम करियर में ग्रो करना है तो कहीं ना कहीं अपनी मेंटल हेल्थ को पीछे छोड़ रहे हैं। क्या ये बैलेंस पॉसिबल है। एब्सोल्युटली, दोनों साथ में पैरेलली हैंड इन हैंड चलते हैं। सी, जस्ट रचना, यू कैन थिंक ऑन योर सेल्फ लाइक इफ यू आर मेंटली हैप्पी और मेंटली बैलेंस, so you always ignite more energies from you, unlock more energies, more confident to reach your goals, obviously, है ना। आप बहुत कॉन्फिडेंट और हैप्पी फील करेंगे और अपने गोल को और अच्छे से करेंगे, कुछ रोकेगा नहीं आपको। एंड सिमिलरली इन अदर वे, if you do those things which loves, like which you love to do, which inspires you, which feel contented,
like which makes you feel contented. So your mental health will automatically balance. You're getting my point. Yes, Like yes. I love to help people. I love to be a motivational speaker. I love to guide people. I am Hmm. doing this, but my mental health, because my mental health is now balanced. I have worked on that. So that's why it radiates more confidence, more energy in me. कि like अगर back to back sessions है, I never felt tired. The reason is this कि what I am doing, I loving that. कि वो मेरा पर्पस है, वो मेरा यूएसपी है। तो मैं जो मेरा जो काम है वो मेरे मेंटल हेल्थ को अलाइन कर रहा है, और जो मेरी मेंटल हेल्थ है वो मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जीज को अनलॉक कर रही है, मोर कॉन्फिडेंस अनलॉक कर रही है। तो ये दोनों चीजें बैलेंस होंगी। बट अभी आपको लग रहा होगा, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि ऐसे कैसे, हर हर इंसान तो अपनी पसंद का काम नहीं कर रहा हम्म। है ना। ये तो वी आर लकी, आई एम लकी कि मुझे ऐसा मिल गया। सो उसके लिए मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना होता है, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड, हर चीज में आपको शुक्रिया करना पड़ेगा, हर चीज में। वहां से आपका मेंटल हेल्थ अलाइन होगा। वहीं से आपको कौन, जब आप हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एवरी एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी लेना स्टार्ट कर देंगे, आपका मेंटल हेल्थ वहीं से बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। वाह वाह, गुड गुड टू हियर दैट कि कैसे कैसे हम चीजों को देख सकते हैं, कैसे हम अलाइन कर सकते हैं। और डेफिनेटली सक्सेस और करियर ग्रोथ के साथ मेंटल हेल्थ को लेकर के चलना भी जरूरी है, और ये पॉसिबल भी है। और ये पूजा बता भी चुकी हैं कि किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, और ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। पूजा, मेरा आज के लिए आपका लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि दैट इज व्हाट इज दैट वन थिंग पीपल कैन डू, वन स्टेप दे कैन टेक टू फील मोर इन देयर कंट्रोल। लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं इमोशंस में, बिहेवियर में। क्या वो एक चीज आप हाँ, एक नोट देना चाहेंगे? एज जैसे मैंने आई टोल्ड ऑलरेडी दैट पेन डाउन करो, रीड बुक्स हम्म। करो, लेकिन उसके अलावा व्हाट पीपल कैन डू, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, जस्ट टेक 15 मिनट्स और 20 मिनट्स फॉर योर सेल्फ। ठीक है। हम्म। एंड व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट डिवाइड दैट 20 मिनट्स इन थ्री पार्ट्स, थ्री इक्वल पार्ट्स। लाइक फर्स्ट पार्ट में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट पेन डाउन योर फॉर योर होल डे। लाइक आज मुझे पूरे दिन में क्या क्या काम करने हैं, जस्ट पेन डाउन। ठीक है। वो लिखा आपने, लाइक आपके पास 3 4 टास्क है, वट, यू हैव टू राइट दैट। ठीक है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आपको मेडिटेशन या एक्सरसाइज कुछ भी ऐसा करना है जिसमें यू आई मीन आपको स्वेट करना है, यू हैव टू स्वेट। ठीक है। यू कैन डू मेडिटेशन, एक्सरसाइज, स्वेटिंग यू कैन डू। ठीक है। हम्म। देन नेक्स्ट हाफ, नेक्स्ट जो थर्ड थर्ड स्प्लिट बचा उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज द थिंग्स। लाइक आपने लिखा कि आज मेरे दिन में चार, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू डू 3 or 4 पॉडकास्ट फॉर एग्जाम्पल। सो हम्म। यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज दैट कि ये मेरे इतने टाइम में करना है, ये मेरा इतने में होगा, ये मेरे इतने ब्रेक में होगा। सो यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज। सो जस्ट 20 मिनट्स in the morning, and you will feel productive at the end of the day, and more controlled, more organized, and more balanced. वाह वाह, लवली लवली, गुड टू हियर दैट। सो गाइस, पूजा ने इतने सारे टिप्स हमें दिए हैं, और क्लोजिंग नोट पर उन्होंने बताया कि किस तरह से आप अपने, अगर आप, मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी की मॉर्निंग्स ऑर्गेनाइज्ड है तो डे भी ऑर्गेनाइज्ड है, वर्क भी ऑर्गेनाइज्ड है, और लाइफ भी ऑर्गेनाइज्ड है। कभी कभी हम इसको टेबल्स की फॉर्म में भी बोलते थे, किचन की फॉर्म में भी फीमेल्स को कहा जाता था कि जिनकी किचन ऑर्गेनाइज्ड है उनका घर भी ऑर्गेनाइज्ड हाँ। है, जिनकी टेबल्स ऑर्गेनाइज्ड है उनका, उनकी बाकी चीजें भी ऑर्गेनाइज्ड हैं। और पूजा ने एक और चीज इसमें ऐड की है कि आप अपने डे को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। 15-20 मिनट्स का आप टाइम निकालें। अगर आप पूरे दिन में 24 घंटे के लिए अगर आप 20 मिनट का, 15 मिनट का टाइम निकाल करके उसको पूजा के दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करें, और डेफिनेटली इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये बहुत प्रूवन टेक्निक्स हैं। दीज आर आल्सो पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, दीज आर आल्सो पार्ट बैक्ड बाय रिसर्च की। ये रिसर्च भी प्रूव कर रही है कि ये चीजें काम करती हैं। क्योंकि जब आप हम्म, लिखते हैं, जब आप पेन डाउन करते हैं, तो एक्चुअली आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। आपके माइंड में हम्म, मल्टीपल थॉट्स चल रहे होते हैं, लेकिन जब आप पेन डाउन करते हैं तो उनको बहुत क्रक्स लेकर के आते हैं, बहुत कम लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। वही एक्चुअली में आपके ओरिजिनल थॉट्स हाँ। होते हैं। एक्चुअली रचना, इसमें एक चीज और ऐड करूंगी हम्म। कि जब हम लिखते हैं ना, क्योंकि हम स्पेशल टाइम निकाल रहे हैं लिखने के लिए, तो उसमें हमारी फीलिंग्स ज्यादा जुड़ी होती हैं। देखिए पहले हम्म। लोग हाँ। प्रेम पत्र, हाँ, लव लिखा, लेटर लिखते थे, लिखा करते थे। और उस अफेयर का, उस रिलेशनशिप का रिप्लेसमेंट नहीं होता था। ठीक है, हम्म। शादी चलो डेस्टिनी वो ने जहाँ कराई, लेकिन वो प्यार रहता था क्योंकि रहता लोग था। एफर्ट्स डालते थे। और आज हाँ, चैट्स में सब डिलीट हो रहा है, सब गायब हो तो रहा वो है। आप समझ डेफिनेटली रहे हो ना। लाइफ से भी डिलीट हो रहा है, वो एक्चुअली में लाइफ से भी डिलीट हो रहा है। वो और बहुत अगर इमोशन, हाँ, किसी को इमोशनल रहता है कि नहीं चीजों को
कर पाते हैं, भुला पाते हैं। तो ऐसे तो राइटिंग में मैं चेंजेस बताती हूँ कि क्या करना है, लेकिन डेली लाइफ में आप अपने घर को डी क्लटर करो। पुराने हम्म। कपड़े जो भर भर के रखे हैं, जिसको लगता है कि कल हाँ, पहन लेंगे, अगले महीने पहनेंगे, वो कभी नहीं आता है। नहीं आते जस्ट हैं। मन पक्का करके डी क्लटर, जितना डी क्लटर कर सको अपना स्टडी टेबल, अपना किचन। और कोशिश ये करनी है कि कैप्सूल वार्डरोब्स रखो। ठीक हम्म। है, ज्यादा भरो मत। जितना आप अपने अलमारियों में सामान भर रहे हो, वो आपके दिमाग में वो भी जगह सोशल ले रहा में है। वो सो कहीं ना डी कहीं क्लटर। है। हाँ। Definitely, definitely. So, Pooja, thank you for the entire show and all the inputs you have given to us. And obviously, all the people who are watching this are definitely going to get benefit because you have shared a lot of small, simple, easy, and doable steps which everyone can follow. So, guys, thank you for the entire show, and let's catch up in the next podcast. Thank you. थैंक यू सो मच अर्चना, थैंक यू। ओके, बाय, टेक केयर।